I think you are facing some network issue. I've started the recording, so anybody who is not able to join or not able to see the PDF can see the recorded PDF. So we started with small intestine and we are seeing the histology of small intestine specifically. So if you see the folds, these folds are in the layer which is called as mucosa, and these folds, these finger-like projections to increase the surface area is called as villi. If you know, आपने काफी पहले भी पढ़ा हुआ इसके बारे में, villi है surface area increase करता है. एंड फर्दर अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करना है ना, फर्दर सरफेस एरिया इंक्रीज करना है, तो इफ यू सी दिस एपिथेलियम, जो एपिथेलियल लेयर होगी ना यहाँ पे, इट हैज सम काइंड ऑफ अ प्रोजेक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम. इफ यू रिमेंबर, जब हमने एपिथेलियम पढ़ा था, तो आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, हाउ डज इट लुक्स एंड एवरीथिंग. सो मतलब जो फोल्ड्स है, जो लाइनिंग्स है, जैसे ये फोल्ड्स है ना, ये फोल्ड्स है, इन फोल्ड्स के ऊपर भी देयर आर सम काइंड ऑफ अ प्रोजेक्शंस व्हिच इज कॉल्ड एज लाइक ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम. मतलब जो epithelium है, it has some kind of a small projections which is looking like a brush. तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होते हैं which further increases. देखो, एक तो सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज हो गया कि एक फोल्ड आ गया, ऊपर से उस फोल्ड पे there are numerous such kind of brush border epithelium, ब्रश बॉर्डर स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से सरफेस एरिया n number of folds increase हो जाता है. Intestine is continuously lined with glands. कैसे कौन से कैसे कैसे glands होते हैं, कहाँ कहाँ पे positioning होती है उनकी, that we will see in the coming slide. ठीक है. I hope this initial introduction part and the specific parts is clear. If you have any doubts, just let me know. If you have any doubts, just let me know. Okay, good. So now we'll be seeing the glands in small intestine, ki how many glands are there and what are their secretions and all, that we will see. ठीक है. So the important part is जो liver and आपका pancreas होता है, liver and pancreas होता है, ये दोनों भी अपने secretion small intestine के अंदर ही डालते हैं. And which part specifically? The part is called as duodenum. जो small intestine का पहला part था duodenum, that J-shaped curve, उस पर्टिकुलर पार्ट में हमारे जो दोनों लिवर हैं एंड पेनक्रियाज है, वो अपना सिक्रीशन डालते हैं. ठीक है. तो वो हम ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स खत्म होने के बाद देन वी विल सी दोज ग्लैंड्स. ओके. So if you see glands in small intestine, there are only two specific glands, which is number one is like Crypts of Leiber-Kuhan बोलते हैं इसे, not Wuhan, it's Crypts of Leiber-Kuhan. ठीक है. इट इज प्रेजेंट ऑल ओवर द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी तीनों के तीनों पार्ट्स जो आपके हैं, उन तीनों पार्ट्स में ये प्रेजेंट होता है. तीनों पार्ट्स ऑफ व्हाट? तीनों पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात चल रही है. तो पहला कौन है भाई? क्रिप्स ऑफ लाइबर-कुहान. ठीक है. प्रेजेंट ऑल ओवर द स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड द सेकंड इज योर ब्रूनर्स ग्लैंड. Second is your Brunner's gland, which is only present in the one part of small intestine, and that part is your duodenum. Only duodenum part में ये आपका Brunner's gland present होता है. पोजीशनिंग अगर आप देखना चाहोगे, तो जैसा मैंने आपको बोला है कि म्यूकोसल लेयर जो होती है, म्यूकोसल लेयर इज लाइक फोल्डेड इन न्यूमरस फोल्ड्स, उसमें आ जाते हैं प्रोजेक्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाते हैं, जिनको नाम दे दिया गया है विलाय, है ना जी. विलाय उनको नाम दे दिया गया है. तो इफ यू सी द क्रिप्स ऑफ लेबर-कुहान, सो इफ यू सी दीज डिप्रेशंस ना, दो विलाय के बीच में जो डिप्रेशंस है, वहां पर जो सेल्स हैं, दोज सेल्स आर कॉल्ड द क्रिप्स ऑफ Leiber-Kuhan. Yani these are the cells which will be releasing some kind of a secretion. Usually crypts of Leiber-Kuhan का जो secretion होता है, it is mostly some kind of an enzyme and mucus. Some kind of an enzyme and mucus. Enzyme, यार enzyme, it has n number of activities, so you cannot name one. So enzyme तो हम enzyme लिखेंगे, nothing else. And it has mucus, so mucus already पूरा इसमें होता ही है, just for the easy flow of food material. So वो जो secrete करता है, that is in your intestine, वो जो secrete करता है उसका नाम है Crypts of Leiber-Kuhan. Crypts of Leiber-Kuhan. ठीक है. It is present in which layer? Can you tell me? It is present in which layer? Crypts of Leiber-Kuhan. It is present in your mucosal layer, because mucosa ही folded है. ठीक है. सब mucosa folded नहीं है, सब mucosa normally ऐसे नीचे नीचे lined है. Only folded is your mucosa. ठीक है. तो म्यूकोसल लेयर में प्रेजेंट होता है कौन? सॉरी, म्यूकोसल लेयर में प्रेजेंट होता है कौन?
क्रिप्स ऑफ लाइबर कोहान, म्यूकोसल लेयर में प्रेजेंट होगा क्रिप्स ऑफ लाइबर कोहान। इनका सिक्रीशन को बोलते हैं एंजाइम। सिक्रीशन जो होता है इनका, इट इज मोस्टली एंजाइम्स एंड म्यूकस। इफ यू सी द लोअर लेयर, म्यूकोसा के नीचे जो एक लेयर होती है, that is called as the submucosa, as you all know. तो submucosa, so if you see these red colors, ये है क्रिप्स ऑफ लाइवर कोहान, ठीक है, ठीक है, ये है क्रिप्स ऑफ लाइवर कोहान, डायरेक्टली अपना सिक्रीशन बाहर रिलीज कर देते हैं। And if you see this flower kind of a structure, this structure is your Brunner's gland, which is located in your submucosal layer. It is located in your submucosal layer. अब देखो, the important thing is present as a group of cells. तो बहुत सारे group of cells एक cluster बना के present होते हैं in submucosal layer, found only in duodenum region. देखा, मैंने आपको बोला था ऊपर भी, Crypts of Lieberkühn is present entirely in your small intestine, but your Brunner's gland is present only in the duodenum region. ठीक है? Okay, if you see the important thing, why it is present in your duodenum region, because see, जो स्टमक से आपका फूड आता है दैट इज हाईली एसिडिक, जो स्टमक से आपका फूड आता है दैट इज हाईली एसिडिक, व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl के प्रेजेंस की वजह से जो फूड स्टमक से आता है इट इज हाईली एसिडिक, बिकॉज दैट इज द इनिशियल टाइम जहाँ पे फूड का ब्रोकन डाउन हमें करना है ना, ठीक है, फूड का हमें लाइक फूड को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में हमें कट करना है, तो वहाँ पे फूड चर्निंग वगैरह तो HCl इज रिक्वायर्ड, ठीक है। बट यार फर्दर जो लेयर आगे की हमारी बॉडीज एसिड को टॉलरेट नहीं कर पाती, आगे के जो भी है ना, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द एपिथेलियम स्ट्रक्चर, तो आगे की बॉडीज को HCl का रिक्वायरमेंट नहीं होता, बिकॉज HCl का जो ब्रेकिंग डाउन का काम था वो उन्होंने कर दिया है। अभी जो काम है इंटेस्टाइन का दैट इज अब्जॉर्प्शन। तो इंटेस्टाइन का जो है, देखो स्टमक, अब इफ यू सी सिंपल, इफ यू यूज अ सिंपल लॉजिक, सी स्टमक शुड हैव डेफिनेटली अ काइंड ऑफ अ थिक एपिथेलियम, इफ यू से, है ना, स्टमक शुड हैव अ थिक एपिथेलियम, बिकॉज फूड आप खा रहे हो, सो दैट फूड शुड बी लाइक कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड देन फर्दर, बिकॉज स्टमक में ज्यादा अब्जॉर्प्शन या ज्यादा क्या, आई थिंक अब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है स्टमक में, ऑल द अब्जॉर्प्शन स्टार्ट्स फ्रॉम योर स्मॉल इंटेस्टाइन। सो अब्जॉर्प्शन अगर नहीं होता है, सो डू यू थिंक कि वहां का जो एपिथेलियम है दैट विल बी फाइन और थिन लेयर्ड? सिंपल एपिथेलियम वहां पे होगा? तो आई डोंट थिंक वहां पर सिंपल एपिथेलियम होगा। व्हाई? बिकॉज सिंपल एपिथेलियम उनका काम ही नहीं है वहां पे तो कंटिन्यूअसली फूड ब्रेकिंग डाउन होने वाला है ना, इसीलिए वहां पे होती है मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम। अब मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम होने का एक और कारण है कि वहां पर सीक्रेट होता है HCl, तो HCl सीक्रेट होता है, तो मल्टी लेयर एपिथेलियम उतना हाई कंसेंट्रेशन ऑफ योर HCl वो टॉलरेट कर पाते हैं, बिकॉज आपका एपिथेलियम है मल्टी लेयर्ड है। बट इफ यू सी इन योर इंटेस्टाइन, अब इंटेस्टाइन में देयर कैन नॉट बी हाई थिक वॉल्ड एपिथेलियम ना, एपिथेलियम अगर ज्यादा लेयर का हुआ तो क्या अब्जॉर्प्शन हो पाएगा? नहीं, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अब्जॉर्प्शन होना। इट शुड बी फाइन थिन लेयर्ड ताकि इजीली अब्जॉर्प्शन हो पाए। तो इसीलिए वहां इस जगह पे अगर HCl बाई चांस आ जाता है तो इट इज नॉट गुड फॉर द बॉडी। सो होता क्या है, देखो, ये जो डुओडेनम रीजन है इसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है ये होता है अल्कलाइन बेसिक, मतलब अल्कलाइन यानी बेसिक। सो होता क्या, जैसे HCl से भरा हुआ फूड, HCl से लाइक HCl मिक्स्ड फूड जब आता है वो डायरेक्टली ज्वाइन कर जाता है, किससे ज्वाइन, मतलब डायरेक्टली मिक्स हो जाता है एक अल्कलाइन सिक्रीशन से, जो सिक्रीट कौन करता है? ब्रूनर्स ग्लैंड करता है। प्रेजेंट कहाँ पे है? ड्यूडेनम रीजन में है। तो एसिड और ये बेसिक जब मिलता है तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है फूड को, समझ में आ रहा है? तो जो एसिड एंड बेसिक जब ये चीज मिलती है दोनों, तो ये फूड को एक न्यूट्रलाइज कर देती है, एंड दैट न्यूट्रलाइज्ड फूड कैन बी देन फर्दर लाइक मूव्ड इनटू द मोर एंड मोर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन रिमूव्ड आउट थ्रू द large intestine. So you got the concept? You got the concept? What is the concept behind this? Why the Brunner's gland is only present in your what do you say, duodenum region? You got the point? Okay. इसका secretion, इसका अगर secretion देखोगे, it is alkaline watery secretion, पानी जैसा होता है to neutralize the acid which comes from the stomach. I hope you got the point. I hope you got the point. Okay. If you see the secretion of both gland is called as your intestinal. Duodenum also have villi. No, 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 no. Duodenum villi in the sense, देखो अगर आपको बोलना है in the scene, if you see, if you consider this ना, if you consider
what do you say, crypts of Leverkusen. So crypts of Leverkusen are present everywhere. Crypts of Leverkusen is present everywhere. So it is also present in your, what do you say, it is present also present in your duodenum region also, है ना? तो क्रिप्स ऑफ लाइवर्कोहन अगर ड्यूडेन रीजन में तो डेफिनेटली वहां पर फोल्ड्स तो थोड़े बहुत होंगे ही. अगर क्रिप्स ऑफ लाइवर्कोहन, बिकॉज क्रिप्स ऑफ लाइवर्कोहन आर प्रेजेंट ओनली इन द डिप्रेशन बिटवीन द टू विलाय. सो डेफिनेटली वहां पर भी आपके क्या बोलते हैं इसको, विलाय होंगी, प्रोजेक्शंस होंगी, फोल्डिंग्स होंगी. ठीक है. सो इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं इसको, सकस एंट्रिकस बोलते हैं. ये सकस एंट्रिकस थोड़ा डिफिकल्ट है, सीधा इंटेस्टाइनल जूस बोलो, इसको स्टमक वाले को गैस्ट्रिक जूस बोलो, काम खत्म करो. ठीक है. इसका जो सिक्रीट दिन भर, दिन में अगर आप पूरे दिन में देखो कितना सिक्रीट होता है, तो एक ही बॉटल भरेगी आपकी, दैट इज योर 1 लीटर. 1 लीटर एक दिन में. ठीक है. 1 लीटर की बॉटल आप भर सकते हो आपके इंटेस्टाइन के सिक्रीट से. ठीक है. मोस्टली ये सिक्रीशन तभी रिलीज होते हैं जब बॉडी के अंदर फूड आता है या फिर बॉडी को फूड दिखता है. मोस्टली तभी होता है जब आता है, दिखता तो रहता ही है. ओके, यू गॉट द पॉइंट, यू गॉट द पॉइंट. इसके अलावा कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज विल बी मूविंग टू द लार्ज इंटेस्टाइन. Do you have any doubt regarding small intestine? Do you have any doubt regarding small intestine? Please tell me. Anything. Okay, let's move to the, and then so large intestine. If you see large intestine, if you see the length is only 1.5 meters. The length is only 1.5 meters. It was earlier small intestine is 6 meters. If you see, length is just 1.5 meters. It is divided into 3 parts. The number 1 part is your cecum, ceacum. The second is your colon, and third is your reticulum. Reticulum is the final opening which like extends into anus, and the waste material is poured out. Okay, so we have 3 parts which is called as cecum, colon, and rectum. Okay. The important thing is like cecum is like individual part, colon has 4 different parts, and rectum is your initial, the exact final opening of the alimentary canal, you can say. So if you see colon is divided into ascending colon, which I'll be denoting as AC, transverse colon as TC, descending colon as DC, and sigmoid colon as SC, you can say. ठीक है, because हर जगह नाम लिखना is not feasible. Okay, so if you see this particular diagram, if you see, देखो भाई, यहाँ से था ये स्टमक है, इसके यहाँ पर पूरा स्टमक है. ठीक है जी, इसके यहाँ ऊपर पूरा स्टमक है. स्टमक से निकलता था भाई स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. यहाँ पे एक स्फिंक्टर है जिसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर. यहाँ से आ गया फूड, ये इसके अंदर नहीं घुसेगा, ये यहाँ पे पहले कॉइल्ड स्ट्रक्चर में पूरा मस्त स्मॉल इंटेस्टाइन में चक्कर वक्कर लगाएगा, सबसे मिलेगा, दोस्त बनाएगा, घूम घाम के ये आ जाएगा भाई, यहाँ चल भाई अब घर चलते हैं, अब ये आ गए, इस पे ज्वाइन कर जाएगा इधर, ज्वाइन करेगा. चल बहुत हो गया, बोर हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेट्स गो एंड हैव सम फन इन लार्ज इंटेस्टाइन. सो जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेंगे, so it will enter from this end. I have already told you the name of this end, which is called as ileocecal opening. I will ask me कि सर क्यों ही ये नाम दिया गया, इसका नाम अथर्व क्यों नहीं दिया, अथर्व ओपनिंग क्यों नहीं दिया? Why? Because this further opening and this opening ये अथर्व नहीं है. Because if you see the last part of small intestine, that is your ileum, and if you see the first part of large intestine is your cecum, इसलिए इसको नाम दे दिया गया है ileocecal opening. इसलिए इसको नाम दे दिया गया है क्या, ileocecal opening. Sure, you got the point. Ileocecal opening. You got the point. Ileocecal opening. Yes. So ये opening है जो enter करती है direct small intestine में. So the पहला part, very small part, which is called as cecum, which has the appendix part. I have already explained you about the appendix. So cecum part होता है very small part. Cecum सिर्फ इतने part को cecum बोला जाता है. उसके ऊपर जो part आता है उसको बोलते हैं ascending colon, because रीजन वो आ जाता है कोलॉन रीजन. तो द ascending colon, then transverse colon, and then descending colon. It is very easy to understand. This is ascending, this is transverse, this is descending. ये फूड यहाँ से एंटर करेगा, पहले ascend करेगा, फिर ट्रांसवर्सली जाएगा, फिर डिसेंड करेगा.
जैसे वो डिसेंड कर जाता है, then it opens into this globular part which is called as your sigmoid colon, which is called as your sigmoid colon. Sigmoid colon then enters into a canal which is called as an anal canal, and then the opening which is called as the anal opening. ठीक है, anal opening if you see it is guarded by two sphincters. Sphincters तो आप stomach pyloric sphincter वहाँ पे observe कर रहे थे, it is some kind of a same sphincter. So it is guarded by two sphincters. The last region which has the anal canal and the anal opening and this bulgy part is called as your rectum. So we have done the three parts, which is cecum, colon and rectum. Cecum is the very starting part. Cecum parts में small intestine आके join करती है. Cecum parts also has an appendix. Okay, then comes the colon. Colon से पहले food ascend होगा, then transversely move करेगा, then descend होगा, and then sigmoid curve से होते हुए and it will move to the anus. Okay. Okay. If you observe about what is the function of this large intestine. अब क्या होता है यहाँ पे undigested food होता है. Maximum absorption तो body को करना होता है ना, वो कर लेती है भाई small intestine में. Small intestine ही maximum absorption हो जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो जाता है, बट तो थोड़ा बहुत पानी वानी बचा होता है, थोड़े बहुत मिनरल्स होते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड से स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं कर पाता है, तो इट इज टेकन बाय योर लार्ज इंटेस्टाइन. तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड मटेरियल टेक्स प्लेस. Absorption of water and mineral from undigested material takes place. So this is the function of your large intestine. ठीक है? Anything else you would like to know? Anything else? Large intestine, there was this much part. सर Yes, sir. सर लार्ज इंटेस्टाइन के विलाय में और स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाय में साइज में डिफरेंस क्यों होता है? क्या ही पता कर लोगे इस क्वेश्चन से तुम? नो सर, सर सेम भी होता तो सर एब्जॉर्प्शन तो सेम ही होना था ना सर. ऐसा नहीं है ना, जो इसके पास जो फूड आता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास वो ऑलरेडी अब्जॉर्ब्ड है, उसमें कुछ बचा ही नहीं, इंटेस्टाइन में स्मॉल ने कुछ छोड़ा ही नहीं है. समझ रहे हो? अच्छा, मतलब बारीकी से निकालने के लिए इसलिए बड़ा साइज है. ऑल इंटेस्टाइन ने एवरीथिंग हैज बीन अब्जॉर्ब्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन. ये बचा हुआ जो बच जाता है बिकॉज फूड इज गेटिंग पास्ड थ्रू दिस, तो बचा हुआ है मैक्सिमम जो अब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन करता है दैट इज वाटर. ठीक है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो होता है दैट इज जस्ट एंड जस्ट वाटर. समझ में आ रही है बात? यस सर. Okay, anything else, do you have any doubts in your mind so that we can do it? Any doubt? You can ask. Yeah, that is we have, if you observe Jaideep, we have, if you see the what do you call the histology, we have two layers which is called muscularis, we have one longitudinal and we have circular muscularis. So उन muscularis muscles का ही movement होता है जिससे food ascend भी कर जाता है, transversely भी move कर जाता है, descend भी कर जाता है. ठीक है? कुठे काय? अरे मला दिसत नाही ना कुठे. अरे क्या हुआ क्या? म्यूट करें मेघा जी, म्यूट करें अपने आप को. देन कैसे लेते हो तुम लोग क्लास, इतना शोर आसपास में? Sit in a quiet room, lock yourself and then take class like me. ठीक है? You got the point? Anything else, Jaideep? You understand ना? Muscularis layer
हिस्टोलॉजी पढ़ो, हिस्टोलॉजी में समझ में आ जाता है कि भाई वहाँ पे मस्कुलरिस लेयर का क्या काम है, लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर दो टाइप के मसल्स क्यों एक्ट करेंगे फूड को ऊपर नीचे ले जाने के लिए, है ना। ओके, सो वी शुड मूव टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज आई थिंक द how liver and pancreas, this is very important, this is very complex as well. If you see the diagram ना बहुत सारी opening and ऊपर नीचे जाता है, यहाँ पे बहुत सारे ducts involved हैं. So this is like देखो अभी सिर्फ gastric juice and small intestine का secretion या फिर आपके buccal cavity का secretion saliva ये इनफ नहीं होता है, you require some more secretion, some more enzymes जो एक्ट करेंगे आपके फूड पे जिससे हम मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑन फूड से कर पाएं. So if you see how liver and pancreas are connected to alimentary canal, this is the topic कि कौन से पोजीशन पे आके वो अपना secretion देते हैं, how is the positioning and all. So if you observe liver in detail we'll be doing in the next slide if time permits. So if you see this particular diagram, देखो बहुत ही अच्छा diagram नहीं है ये definitely. If you see this is stomach, so stomach as you know we have told it is mostly on the left hand side, towards tilted towards left hand side and also oblique होने का रीजन एक यही है बिकॉज यहाँ पे लिवर आ जाता है, लिवर भाई आ जाता है, ये ऊपर आपको पता होगा लंग्स के नीचे एक डायफ्राम करके होता है, पता है कि नहीं, वो फिर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे इसको, बट आई होप यू नो द डायफ्राम काइंड ऑफ थिंग, वो वेल करता है, फूलता है जब ब्रीदिंग एंड ऑल समथिंग, you know it better than me. Okay, 1 minute. Yes, so this is the diaphragm, just below the diaphragm, because diaphragm if you see it is like somewhat ऐसे curved होता है structure, and diaphragm पे just आके your आपका इस तरफ से ऐसे लग जाता है your you call it liver, and liver के just यहाँ पे रहता है stomach और यहाँ पे रहता है आपका liver. So if you see this liver एक लाइक लोब्ड स्ट्रक्चर है, लोब भी इसके देखे जाए तो 4 लोब है, 2 मेजर लोब्स हैं. लाइक इफ यू ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर पार्ट, 1 इज द बिगर वन, ये लोब आप देख रहे हो, ओह बहुत ज्यादा ही यहाँ पे मार्किंग हो जाएगी, गॉड. हाँ, इफ यू सी दिस पर्टिकुलर थिंग जो मैं ग्रीन में मार्क कर रहा हूँ, दिस इज योर लोब नंबर 1 एंड दिस इज योर लोब नंबर 2. 2 लोब होती है, इधर वाली लोब में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर क्या करता है, इफ यू नो गॉल ब्लैडर क्या क्या करता है, होती है डेफिनेटली, कहाँ रिलीज होने वाली है, कौन से सर आपकी आवाज अटक रही है बार बार. अभी अब ओके सर. freeze. Oh, I'm back. Yes. Okay. हाँ जी, तो मैं क्या बता रहा था आपको, लिवर के बारे में बता रहे थे. लिवर देखो ये है स्टमक की पोजीशनिंग, द वन इन ब्लैक कलर, द रेड कलर इफ यू सी इट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. इफ यू सी जो स्मॉल इंटेस्टाइन को जे शेप हमने जो कर्व की बात करी थी, इसके बीच में ऐसे फंसा होता है कौन, आपका पैनक्रियास. आपका पैनक्रियास, पैनक्रियास का सिक्रीशन को पैनक्रियाटिक जूस ही बोलते हैं, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है. लिवर के सिक्रीशन को हम बाइल बोला जाता है. इफ यू सी बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड पे है स्टमक, तो ऑफ कोर्स राइट हैंड साइड पे आपका लिवर होगा. लिवर मोस्टली लोब स्ट्रक्चर है, 4 लोब्स होते हैं, 2 मेजर लोब्स है जिसकी स्टडी की जाती है, दैट इज योर फर्स्ट लोब व्हिच इज स्मॉल एंड द बिगर लोब. ठीक है, उसमें फिर एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, जो बाइल स्टोर कर देता है फॉर द टाइम बिंग. जब आप खाना नहीं खाते हो तो उस टाइम पे जो बाइल सिक्रीट होता है लिवर से वो स्टोर हो जाता है. ठीक है, वो स्टोर हो जाता है, कैसे होता है वी विल सी. इफ यू सी देखो
दो डक्ट्स होते हैं जो लिवर से डायरेक्टली, लिवर का जो सिक्रीशन होता है डायरेक्टली लेते हैं। दो डक्ट होते हैं, इनका डक्ट का नाम दिया गया है हेपेटिक डक्ट। एक लेता है लेफ्ट डक्ट, एक लेता है लेफ्ट लोब से, एक लेता है राइट लोब से, ठीक है, फ्रॉम द स्मॉलर वन एंड फ्रॉम द बिगर वन। तो दो डक्ट हैं, इनका नाम है हेपेटिक डक्ट। इसको यही बोल देते हैं राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, नथिंग एल्स। तो इफ यू राइट हेपेटिक डक्ट ना, इट्स नथिंग रॉन्ग, आप हेपेटिक डक्ट लिखो। आई वांट एवरीवन, जितने भी हैं, अ फुल कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज एवरी स्मॉल पार्ट इज लाइक विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। So I want full attention of you all. So for the time being, मैं अगर आपको बताऊं, so I will try and not use much of the marking. I'll use the pointer. If you see this diagram, so I'm talking about this topic. जिसका labeled है ये रहा hepatic duct. So if you see this diagram, there are two ducts. One is into the left, one is into the your left लोब ऑफ लिवर एंड वन इज इनटू योर राइट लोब ऑफ लिवर। सो ये दोनों बाइल इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और फिर ये पहले तो अलग अलग होते हैं, फिर आगे जाके हो जाते हैं कंबाइन, आगे जाके हो जाते हैं कंबाइन, ठीक है। फिर वो कंबाइन लोग आ जाते हैं यहाँ पे। फिर इफ यू सी ये, फिर क्योंकि यहाँ पे स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ये तो डायरेक्टली सिक्रेशन तो लेता ही लेता है, बट जहाँ से स्टोर होता है, और यहाँ से तो ले ही रहा है, बट वो देखेगा यार मेरा जो गॉल ब्लैडर है उसमें भी पड़ा हुआ थोड़ा बहुत, तो फिर यहाँ से भी लेना चाहेगा। तो गॉल ब्लैडर से एक डक्ट जाता है जो दोनों ज्वाइन कर जाते हैं, तो डक्ट दोनों ज्वाइन कर जाते हैं, ठीक है, जो डक्ट दोनों ज्वाइन कर जाते हैं, जिसको नाम दे दिए गए हैं कॉमन बाइल डक्ट। देखो यहाँ पे लिखा गया है कॉमन बाइल डक्ट। मतलब गॉल ब्लैडर का जो सिक्रीशन है वो प्लस जो फ्रेश सिक्रीशन लिवर कंटिन्यूसली कर रहा है, फ्रेश सिक्रीशन जो लिवर कंटिन्यूसली कर रहा है वो, प्लस योर आपका जो गॉल ब्लैडर में ऑलरेडी स्टोर्ड है, ये जाके कंबाइन एक ही उसके अंदर आ जाते हैं, एक ही उसके अंदर आ जाते हैं, एक ही डक्ट के अंदर आ जाते हैं। उस डक्ट का नाम दे दिया गया है कॉमन बाइल डक्ट, उस डक्ट का नाम दे दिया गया है कॉमन बाइल डक्ट। ओके, सो इफ यू सी कॉमन बाइल डक्ट स्टमक के पीछे से होते हुए निकलता है नीचे की तरफ। तो गॉल ब्लैडर आता है क्या? गॉल ब्लैडर में बाइल डक्ट भी डेफिनेटली यहीं से आता है। कैसे आता है मैं बताता हूँ, देखो, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आई विल टेल यू कि कैसे आता है वो। देयर इज अ मैकेनिज्म बिहाइंड दैट कि गॉल ब्लैडर कैसे भरता है। ओके, इफ यू सी ये यहाँ से स्टमक के पीछे से होता हुआ यहाँ से वापस ओपन करेगा, यहाँ से ओपन करेगा, फिर वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, फिर वो आ जाएगा यहाँ पर। अब मैं अपनी लेबलिंग में मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैंने क्या लेबल किया है। सो दैट्स अ टास्क फॉर मी एज वेल। let me see. Oh, it's very confusing. Spinster of Boyden तो इसको बोलते हैं, correct, no issue. Spinster of Oddi is the final one. Yes. So if you see, क्या है भाई साइड में क्या है, cystic duct. Okay, yes, इसका नाम cystic duct है। जो गॉल ब्लैडर से जो आता है ना, ये वाला गॉल ब्लैडर से जो आता है डक्ट, गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आता है सिस्टिक डक्ट, और ये है हेपेटिक। सिस्टिक प्लस हेपेटिक इज योर कॉमन बाइल डक्ट, सिस्टिक प्लस हेपेटिक इज योर कॉमन बाइल डक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देयर इज अ स्पिंस्टर, यहाँ पे देयर इज अ स्पिंस्टर बिफोर। देखो क्या होता है, बाइल फ्रॉम योर लिवर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम योर पैनक्रियाज, ये दोनों भी एक ही ओपनिंग में हो जाते हैं, दोनों मिक्स हो जाते हैं जाके आगे। तो इन दोनों को भी हमें एक में लाना है। तो बिफोर दे बोथ जॉइन देयर इज अ स्पिंस्टर, इफ यू सी दिस स्पिंस्टर का नाम देखो दिया गया है स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन, लिखा गया है, देखो ये रहा, यहाँ पे लिखा है स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन। दिस ब्लैक डॉट मैंने इसको डार्क कर दिया है, दिस इज कॉल्ड एज स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन। स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन होता क्या है, यहाँ पे स्पिंस्टर है, मतलब अगर आप फूड नहीं खा रहे हो तो दैट स्पिंस्टर विल बी क्लोज्ड। ओके, सो व्हाट हैपेंस, मान लो अभी बाइल तो सिक्रीट होता जाएगा, बाइल तो सिक्रीट हो रहा है कंटिन्यूसली, तो यहाँ का सिक्रीशन लेफ्ट एंड राइट लोब का सिक्रीशन यहाँ से होते हुए, इसके थ्रू होते हुए यहाँ स्पिंस्टर तक आ जाएगा। वो देखिएगा यार स्पिंस्टर तो बंद है भाई, आज छुट्टी है आपकी, स्पिंस्टर बंद है, गेट बंद है, दरवाजे बंद है, क्या करें, चलो खेलने चलते हैं। फिर ये निकल जाते हैं पीछे, वापस से मूवमेंट होते हुए जाके बैठ जाते हैं गॉल ब्लैडर में, ये इनका प्ले ग्राउंड है, ठीक है। ये बोलते हैं आज गेट बंद है तो अपन घूम के चलते हैं वापस पीछे, और यहाँ जाके बैठ जाते हैं, बोले जब गेट खुलेगा तब आएंगे, है ना, जब गेट खुलेगा तब आएंगे। तो तब तक टाइम पास करने के लिए चले जाते हैं ना गॉल ब्लैडर में। आई बात समझने, गॉल ब्लैडर में बाइल कहाँ से आता है, यहाँ से आता है, ठीक है। यूजुअली डायरेक्ट सिक्रीशन ही होने वाला है, डायरेक्ट सिक्रीशन ही होगा, अरे हर टाइम पे आपको बाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओनली व्हेन यू ईट फूड, जब फूड डाइजेशन हो रहा होता है तभी आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो बिकॉज ऑफ
स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन ये चीज पॉसिबल होती है। स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन यहाँ पे जब बंद होता है तो यहाँ पे जो बाइल इकट्ठा हो जाता है वो जाके गॉल ब्लैडर में जाके बैठ जाता है, गॉल ब्लैडर में जाके बैठ जाता है। एंड व्हेन वी ईट फूड, अगर ये इनफ नहीं होता है तो डेफिनेटली बाइल का भी आ जाके मिक्स होके फिर वो आ जाता है। ठीक है, ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। गॉल ब्लैडर अगर फुल हो गई तो गॉल ब्लैडर फुल यार यूजुअली मतलब फुल हो गया ऐसे सीन तो होते नहीं है, काफी ले लेता है वो। आई थिंक आई हैव रिटर्न आल्सो गॉल ब्लैडर 30 to 50 ml तक ले लेता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। But that the cycle is every cycle is like continuously fixed up, because है ना, एक ही है कि अब आपको फूड आपका जब डाइजेस्ट हो गया तो वो अब सिक्रीशन कम कर देगा। फिर उसको पता है हाँ भाई इवनिंग आ रही है तो ये डिनर टाइम होने वाला है, अंधेरा हो गया है, चल थोड़ा भाई सिक्रीट कर ले, है ना, खाना खाने वाला ही है। तो इस हिसाब से होता होगा। देयर इज अ पर्टिकुलर साइकिल, जिस टाइम पे लोग सिक्रीट करें। जिस टाइम पे आप फूड नहीं खा रहे हो ना तो वो नहीं सिक्रीट करेगा, जिस टाइम पे खा रहे हो तो उस टाइम पे सिक्रीट करेगा, और जिस टाइम पे आप सिक्रीट करेगा तो वो डेफिनेटली यूज हो जाएगा, डेफिनेटली यूज हो जाएगा। बाइल का जो वो है करेंगे, इट इज डेफिनेटली बेसिक ही होता है, पीएच उसका 8 होता है बाइल का। वी विल सी द कंपोजिशन एंड एवरीथिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड, डोंट वरी, एवरीथिंग इज रिटन। या सो दिस वाज स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन। इससे पता चल गया हमें कि गॉल ब्लैडर कैसे भरता है। फिर देखो स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन खुलेगा, फिर पैनक्रियाटिक डक्ट और ये डक्ट कॉमन कर जाती है, दोनों कॉमन कर जाती हैं। इफ यू सी पैनक्रियाज ना, दिस इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक डक्ट के फॉर्म में आ जाता है, वो डक्ट को बोल देते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। डक्ट ऑफ विल्सन देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, डक्ट ऑफ विल्सन, ठीक है, डक्ट ऑफ विल्सन, WIRSUNG। नाम अजीब अजीब है। दिस इज ऑल द डक्ट्स इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, जिन साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था इनिशियली। ठीक है, तो डक्ट ऑफ विल्सन, and your common bile duct, duct of Wilson and your common bile duct then opens into your duodenum। बट वहां पे भी एक स्पिंस्टर एक और आ जाता है, स्पिंस्टर है ना, आता है कि नहीं, हाँ आता है ना। वहां पे भी एक स्पिंस्टर आ जाता है, जिस स्पिंस्टर का नाम है स्पिंस्टर ऑफ ऑडी, जो है लास्ट स्पिंस्टर। ये ओपन हो जाएगा तो दोनों के सिक्रीशन डायरेक्टली ड्यूोडेनम के अंदर आ जाएंगे। ये अगर ओपन हो जाता है तो दोनों के सिक्रीशन उसके अंदर आ जाएंगे। आई बात समझ में? बोलो बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? सर वहाँ पे 2 ओपनिंग है सर ड्यूडेनम में, दो पैनक्रियाज। दो ओपनिंग नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एक ही ओपनिंग है। जो बाइल आ रहा है प्लस जो पैनक्रियाज का डक्ट आ रहा है, दोनों कंबाइन कर जाते हैं। इफ यू सी यहाँ पे एक स्पिंस्टर, दोनों स्पिंटर क्यों? अरे देखो रुको रुको तुम सुनो, यहाँ पे एक स्पिंस्टर है, यहाँ पे ये है बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ दिस बाइल का जो डक्ट है प्लस पैनक्रियाज अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ। अगर इफ आई कैन मेक अ सेपरेट डायग्राम ना, आई कैन शो यू। सी इफ यू सी, अरे ये कैसा है मार्कर, अरे बाप रे कुछ और ही है ये तो। हाँ, इफ यू सी देखो, ये रहा जो ऊपर से आ रहा है बाइल, यू कैन से बाइल डक्ट, है ना, और यहाँ पर एक स्पिंस्टर है, यहाँ पर एक स्पिंस्टर है, ठीक है, उसको नाम दे दिया स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन। अब यहाँ पे ये है, ये जो मैंने नीचे जो बनाया है, दिस इज योर विल्सन, डक्ट ऑफ विल्सन। अब ये तो है यहाँ पे स्पिंस्टर। अब ये स्पिंस्टर होने के बाद यहाँ से आके दोनों ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे आके ज्वाइन करेंगे, देन वो डक्ट कॉमन हो जाता है दोनों का। डायग्राम थोड़ा अजीब हो गया, समझ गया सर। समझ गया ना, समझदार हो तुम। ये ऐसे आके और ऐसे आके और ऐसे आके ज्वाइन कर जाएगा, फिर ये कॉमन हो जाएगा। फिर अब इसका सिक्रीशन, जब ये स्पिंस्टर खुलेगा तो इसका सिक्रीशन यहाँ आएगा। ये तो सिक्रीशन बिकॉज यहाँ पे कोई स्पिंस्टर नहीं है तो डायरेक्टली आ जाएगा, तो इन दोनों का सिक्रीशन यहाँ के मिक्स हो जाएगा। फिर अब भाई सिक्रीशन हो गया तो ये क्या, ये सिक्रीशन तो फिर कंटिन्यूसली गिरता रहेगा ना ड्यूोडेनम के अंदर, बट नहीं अब खाना नहीं खा रहे तो नहीं डालना, तो यहाँ पे एक और स्पिंस्टर लगा देते हैं वो, कि दोनों का कॉमन सिक्रीशन ड्यूोडेनम के अंदर जाने से पहले एक और जो वो है स्पिंस्टर लगा दिया उन्होंने, जिसका नाम है स्पिंस्टर ऑफ ऑडी। तो फाइनल जो स्पिंस्टर है उसका नाम है स्पिंस्टर ऑफ ऑडी। वो ऑडी का स्पिंस्टर जब खुलता है, जब हम खाना खाते हैं, वो डायरेक्टली उसका जो सिक्रीशन होता है दैट गेट रिलीज्ड इनटू योर duodenum. Duodenum is a part of what? Duodenum is a part of your small intestine. Yes, duodenum is a part of your small intestine, correct? Good. So you got the thing? You got the thing?
इफ यू सी बाद में इस जब यहाँ कॉमन डक्ट हो जाता है ना, उन कॉमन डक्ट को एक नाम दे देते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटो कम्स फ्रॉम योर दिस हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक इज योर नथिंग बट योर लीवर को बोला जाता है, एंड पेनक्रियाटिक इज योर पेनक्रियास। तो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट जो कॉमन डक्ट हो जाता है उसको हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, जो अपना सिक्रीशन वहाँ रिलीज कर देता है। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। Oh, I think one thing is remaining. If you see, देखो पैनक्रियाज में दो टाइप से सिक्रीशन रिलीज करता है, एक तो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट से। जो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट क्या होगा, उसमें सिक्रीशन किसका, पैनक्रियाज का सिक्रीशन प्लस लीवर का सिक्रीशन, बाइल, ये दोनों मिक्स होकर ड्यूडेनम में गिरेंगे। बट पैनक्रियाज में अगर आप देखा होगा, मैंने यहाँ पे देखो रेड पेन से बनाया, पैनक्रियाज से डायरेक्ट लाइन उठ रही है, डायरेक्ट जो जा रही है ड्यूडेनम में। मतलब पैनक्रियास का सिक्रीशन डायरेक्टली भी ड्यूडेनम के अंदर जा सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। वो पॉसिबिलिटी किसकी वजह से हुई है, बिकॉज ऑफ अ डक्ट जिसका नाम देखो यहाँ रेड कलर के डब्बे में लिखा हुआ है, डक्ट सिक्रीशन डायरेक्टली फ्रॉम पैनक्रियास इनटू ड्यूडेनम, बिना कोई कॉमन जॉइनिंग के डायरेक्टली सिक्रीशन होता है फ्रॉम द डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। Ducts of Santorini, again on the name of the scientist. You got the point? Duct of Santorini. Duct of Santorini is clear? Good. इसको डेफिनेटली जाके एक बार रिवाइज करोगे। इसको अगर रिवाइज नहीं कराना तो अगेन नेक्स्ट टाइम जब पढ़ोगे एवरीथिंग विल बी कॉम्प्लिकेटेड। सो वेरी लाइक इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि भाई इसको आज जाके डेफिनेटली अब रिवाइज करना। ये रिवाइज नहीं करते हो ना, इट विल बी डिफिकल्ट। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं जितनी फाइल अभी तक रेडी है आई विल जस्ट सेंड इट, है ना, ताकि प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ क्लास खत्म होते ही, तो आई डू इट अर्लियर, मैं आपको पहले ही भेज देता हूँ। एक मिनट में कम बताता हूँ क्यों किए कमाई। ओके, सो व्हाट वाज योर क्वेश्चन कि वो दो डक्ट कंबाइन किए हुए क्यों हुए, मतलब हमने यार जबरदस्ती तो किए नहीं है, वो ऐसा स्ट्रक्चर बन के आया है, हमने तो ऑब्जर्व किया, पढ़ा और तुम्हें बताया है। You can say that, but देखो यार, अब उसका कोई रीजन ये भी हो सकता है कि आई डोंट नो, मेरे दिमाग में तो कोई रीजन आ नहीं रहा है इस चीज का कि भाई डायरेक्टली हो रहा था तो अलग अलग क्यों किया, तो अगर मिलके हो रहा है तो फिर अलग से क्यों दिया। आई डोंट नो, मेरे हिसाब से तो जो जैसा दिखा तो वो वैसा पढ़ लिया उन्होंने, दैट वाज द थिंग। मे बी एफिशिएंसी बढ़ जाती होगी, अगर ये दोनों मिक्स होके जाते हैं तो एफिशिएंसी शायद बढ़ जाती होगी इन दोनों चीज की। जयदीप रिसर्च करो बोल रही है भक्ति, यस। It works, that's the full reason. It works मतलब I think the reason is this only कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती होगी उन दोनों की एक साथ जाने पे, एक सिंगल टाइम एक ही साथ सिक्रीशन होता होगा दोनों का, तो एक एडिशनल दे दे कि भाई अगर यहाँ से सिक्रीशन अगर नहीं हो रहा है तो कम हो रहा होगा, या फिर फूड एक टाइम पे अपने ज़्यादा खा लिया होगा और पैनक्रियाटिक जूस की ज़रूरत हो रही होगी, तो फिर पैनक्रियाटिक जूस उधर डायरेक्टली अपना सिक्रीशन डाल देता होगा। दैट कैन बी अ रीज़न एज वेल, है ना, कि अगर सिक्रीशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है आपको तो
पेनक्रियास से डायरेक्टली सिक्रीशन वहां चला जाता होगा. दैट कैन बी अ रीजन. ओके, आई विल आल्सो डू रिसर्च ऑन दिस कि क्यों भाई दो क्यों ओपनिंग होती है, एक से काम क्यों नहीं चल रहा है इनका मतलब हमारा सब में हमारे में ऐसा ही है. ओके हाँ जी. इसके बाद ये आई थिंक समझ में आ गया होगा. इसके भाई ये लोग चीज़ ना, ये चीज़ें याद नहीं रहती. स्पिंस्टर ऑफ ओडी, स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन, ये वो स्पिंस्टर ऑफ सेंटोरिनी, सब चीज़ याद करनी पड़ेगी. दैट इज माई ओनली कंसर्न. आज जाके इसको रिवाइज करो. आज जाके रिवाइज नहीं करा मतलब भाई बहुत गड़बड़. ठीक है, फिर कुछ नहीं समझ में आना. स्ट्रक्चर ऑफ लीवर देखने वाले हैं, फिर फंक्शन देखने वाले हैं. ओह माय गॉड, ओनली 2 स्लाइड्स. ओनली 2 स्लाइड्स वी हैव. ओके नो प्रॉब्लम. स्ट्रक्चर देखेंगे, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर. बहुत डिटेल में हम इसको नहीं कर रहे हैं बिकॉज यार कोई नहीं पूछने वाला फॉर द टाइम बिंग आपको डिटेल में. सबसे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है. एक्सोक्राइन ग्लैंड, इफ एनीवन वांट टू टेल मी व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड फॉर अ रिवीजन. व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड? सर अपना सिक्रीशन वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं देता, सरफेस पे देता है. और कुछ और अच्छे से मे बी. Anyone else? Duct was the word which I was eagerly waiting to listen. Duct नहीं यूज किया किसी ने. डक्ट यूज करो. डक्ट के थ्रू सिक्रीशन होता है, नॉट डायरेक्टली ऑर्गन पे थ्रू नहीं करता है. डक्ट के थ्रू ऑन द सरफेस सिक्रीशन रिड्यूस होता है. यस और नो? यस. ठीक है. Just give me 1 minute. जी हाँ, डक्ट वाले ग्लैंड तो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है बॉडी का. अगर आप इसका वजन करोगे तो ये 1.6 kg की होगी. अपना निकाल के चेक करने की जरूरत नहीं है, 1.6 kg का ही होगा. दो मेन लोब होते हैं, दैट इज योर राइट एंड लेफ्ट, जो हमको डायग्राम में दिखा होगा. तो स्मॉलर लोब्स होते हैं, दैट इज नॉट विजिबल इनफ. तो स्मॉलर लोब्स होते हैं जिसका नाम है क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब. तो क्वाड्रेट लोब है जहाँ पे आप देख रहे हो गॉल ब्लैडर जहाँ पे लटक रहा है. डोंट इमेजिन कि भाई ये राइट वाला वो है, राइट तो है ही है, बट राइट के अंदर एक और एलोंगेशन, एक और लोब है जिसका नाम है क्वाड्रेट लोब. उसके अंदर गॉल ब्लैडर अटैच्ड होता है. 30 से 50 ml, 30 to 50 ml ऑफ बाइल ये अपने अंदर रख सकता है. सिक्रीशन ऑफ लिवर को अगर आप बोलो, सिक्रीशन जो लिवर का है उसको बाइल बोलते हैं. लिवर के सिक्रीशन को बाइल बोलते हैं. इसका फंक्शन देखो, बहुत सारे फंक्शन है. सबसे पहले बाइल सिक्रीशन तो है ही है, दैट इज द लास्ट पॉइंट. उससे मेजर पूरे बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म में ये चीज हेल्प करती है. इफ यू सी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मेटाबॉलिज्म से अब आपको समझ जाना चाहिए कि या तो मेटाबॉलिज्म होगा एनाबॉलिक या फिर होगा कैटाबॉलिक या फिर होगा दोनों. एनाबॉलिक इज समथिंग इज गेटिंग मेकिंग, something is getting makeup, किसी चीज को हम बना रहे हैं. and catabolic is something which is getting broken down. Okay, yes. So if you see metabolism of carbohydrate हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसका सुक्रोज में कन्वर्ट होता है शुगर के फॉर्म में. तो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज,
तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में सिक्रीट करता है, बिकॉज ग्लूकोज इज योर एनर्जी करेंसी, इफ यू कैन से ग्लूकोज के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है। बट यार फॉर द टाइमिंग हम सो रहे हैं, हमें एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो भाई वो एक्सेस ग्लूकोज का क्या करता है, एक्सेस ग्लूकोज को लिवर, बिकॉज लिवर के अंदर होता है ये सारी चीजें, एक्सेस ग्लूकोज एक स्टेप में जाता है जिसका नाम है ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज अगर एट प्रेजेंट कहीं स्टोर्ड है तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड है। ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब क्या हो रहा है भाई, अब मान लो तुम जैसे उठे, तुम भागने चले गए, दौड़ने चले गए, खेलने चले गए, तो अब तुम्हें भाई एनर्जी की जरूरत है, तुम्हें एनर्जी की जरूरत है। वो बोलेगा ठीक है, अपना तो जो रेगुलर ग्लूकोज तो पड़ा है वो तो मैं यूज कर ही लेता हूँ, बट हाँ भाई मैंने जब तुम सो रहे थे मैंने उस टाइम पे थोड़ा सा ग्लाइकोजन मैंने सेव बना लिया था, अब तुम्हें वो यूज करना है। तुम बोलोगे हाँ भाई मेरे को एनर्जी चाहिए, मेरे को बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है, हाँ जी बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है, तुम बोलोगे। ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी सेल के अंदर ही स्टोर होगी, नॉट ब्लड और नॉट एनी ऑर्गन इज नॉट देयर, एनर्जी इज एनर्जी, सेल के अंदर ही स्टोर होगी वो। कैसे क्वेश्चन पूछते हो भाई, ब्लड के अंदर कहाँ की एनर्जी स्टोर होगी, सेल्स is the unit. No, muscle and all. You go with the ऐसा आंसर दो ना जो गलत ही नहीं हो सकता। सेल, मसल क्या है, सेल से बना है, ब्लड क्या है, सेल से बना है, समझ रहे हो? लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाया करो, ऐसे ही कुछ भी आंसर नहीं देना। हाँ ठीक है, मैं क्या बता रहा था आपको भाई, ग्लूकोज की मान लो आपको अभी जरूरत पड़ी तो आप बोलोगे यार भाई वो स्टोर्ड ग्लाइकोजन था उसको जरा बना जल्दी से ग्लूकोज। तो आप बोलोगे, बॉडी बोलेगी ठीक है भाई ग्लाइकोजन को मैं एक प्रोसेस से के थ्रू पास कर देता हूँ जिसका नाम है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। if something is genesis that means it is making up and something is lysis that means it is breaking up, है ना? ग्लाइकोजन बन गया, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा, है ना? ब्रोकन ग्लूकोज किस फॉर्म में आ जाएगा, ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाएगा, बॉडी को चाहिए होगी तो बॉडी को मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करता है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, कौन? लिवर के अंदर होता है। लिवर आपको, लिवर डेफिनेटली उसकी हेल्प करता होगा किसी न किसी वे में। एंड इफ यू से कि मान लो ये तो ग्लूकोज का है, अगर प्रोटीन और अमाइनो एसिड या फिर कोई फैट है उसको अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, NEO होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, किसी भी प्रोटीन अमाइनो एसिड फैट्स जो अभी यूज नहीं हो रहे हैं उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यूज नहीं हो रहे मतलब जो प्रेजेंट है बॉडी में बट उनको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, हम ग्लूकोज के फॉर्म में ही, शुगर के फॉर्म में ही, हम कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ही, एनर्जी फॉर्म में ही हम उसे यूज कर सकते हैं। उनका कन्वर्जन इस पर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये भी लिवर के अंदर ही होता है। फैट का मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होता है, फैट्स जिस फॉर्म में हम लेते हैं उसको स्टोर्ड फैट में अगर रखना हो, मतलब कि भाई अभी फैट की जरूरत नहीं है उसको स्टोर कर दो, ठीक है, तो ये है स्टोर्ड फैट। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। तो जो स्टोरेज होता है इसका मेटाबॉलिज्म कौन हेल्प करता है, इसका मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है सर की लाइपोजेनेसिस। ठीक है, लाइपोजेनेसिस, लाइपो इज एवरी टाइम एसोसिएटेड विद फैट, इफ आई वांट टू से लाइपो इज एसोसिएटेड विद फैट। एंड अब मान लो आपको फैट की रिक्वायरमेंट है, आपने फैट क्या बोलते हैं, आपने फैट ऊपर से नहीं खाया, मतलब आपने एनर्जी नहीं ली, तो आपकी बॉडी में जो अपने मतलब कुछ भी एनीथिंग ऑयली या फिर एनीथिंग हैज फैट, आपने वो चीज़ नहीं खाई, नहीं इनटेक करी एंड बॉडी को रिक्वायरमेंट हुई कि हाँ भाई फैट खाना है, फैट चाहिए मुझे, तो जो स्टोर्ड फैट होगा बॉडी एक प्रोसेस में जाएगी जिसका नाम है लाइपोलाइसिस, उससे वो वापस बन जाएगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जिस फॉर्म में बॉडी उसे यूज कर सकती है। तो ऐसा ही मेटाबॉलिज्म होता है फैट्स का, ऐसा ही मेटाबॉलिज्म होता है कार्बोहाइड्रेट का। ओके, उसके बाद प्रोटीन वोटीन सबका ऐसा ही मेटाबॉलिज्म होता है। फिर एक जो 2-3 फंक्शन है, वी हैव टाइम आई गेस, oh we have only 3 minutes, we'll do fast. It's very simple points. कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक, अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट करने में लिवर हेल्प करता है। ठीक है, लिवर सबसे इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये हेल्प करता है इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन, इरेथ्रोपोइसिस इज आरबीसी का प्रोडक्शन। तो जो अभी देखो बड़े जब हम हो जाते हैं तो हमारे बोन मैरो ये फंक्शन करते हैं, बोन मैरो आरबीसी प्रोड्यूस करता है, और जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं ना, हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब हम होते हैं तो ये इरेथ्रोपोइसिस पता है कौन करता है, तो ये इरेथ्रोपोइसिस करता है आपका लिवर। ठीक है, ये आरबीसीज प्रोड्यूस करता है। थर्मो रेगुलेशन, बॉडी के जो प्रॉपर हीट होता है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करता है। हेल्थ एंड डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी एक्सेस टॉक्सिक मटेरियल या फिर वेस्ट होता है, टॉक्सिक जो भी सब्सटेंस बॉडी के अंदर आ जाते हैं उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। प्रोडक्शन ऑफ बाइल, दिस इज द लास्ट थिंग, प्रोडक्शन ऑफ बाइल,
And if you see the composition ना, very simple, acid से acids होते हैं, salts होते हैं, bile pigment होते हैं, water होता है, यही composition है bile का. किसी ने क्वेश्चन किया था कि composition क्या है, तो ये है उसका आंसर. Acid होते हैं कोइक acid, deoxycoic acid, chenodeoxycoic acid. If you can remember, then well and good. If you can't remember, then it's okay. If you can only write bile acid, that's enough. And we have some bile salts, which is sodium bicarbonate, sodium glycolate, sodium taurocolate. ठीक है, ये होते हैं. Then we have some kind of pigments which give some kind of a color to the undigested food, that is bilirubin and biliverdin. ये पिगमेंट्स होते हैं. डेफिनेटली वाटर होता है तभी वो सिक्रीशन होगा और बॉडी में यूज हो पाएगा. बाइल का पीएच किसी ने पूछा था, इट इज 8, मैंने तब बता दिया था, बट इट इज आल्सो रिटन, अगर आप भूल जाते हो, इट इज 8. बेसिक होता है ये. Okay, so this is the thing. यहाँ तक हमने कर लिया. We have finished the alimentary canal. We are on liver. So ऐसे ही I think हम pancreas भी करेंगे, and then we have like we'll be finishing कल और परसों में, तो definitely we can finish this particular chapter. So if you don't have any doubt, HCl का pH अब क्या बोलोगे? HCl is acid ना, तो acidic pH होगा. वो concentration जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा acidic. अरे रे, मिस्टर जयदीप, ठीक है. So I hope everything is clear. So if everything is clear, you can leave. Thank you so much for joining. सर. Have a nice day. याद रहता है मुझे कौन है कौन नहीं. Don't worry. ओके.